हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। व्हाई डू वी स्टडी लिटरेचर? व्हाई डू वी स्पेंड आवर्स रीडिंग नॉवेल्स, एनालाइजिंग पोएट्री एंड डिस्कसिंग प्लेस? क्या ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है या कुछ और भी वजह है? इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट स्टोरीज, विदाउट पोएट्री, विदाउट द मैजिक ऑफ वर्ड्स। कैसा लगेगा अगर कोई प्रेमचंद नहीं है, ना कोई शेक्सपियर है, ना कोई गालिब? बिना लिटरेचर के हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन सब अधूरा रह जाएगा। Literature is not just about words on a page, it's about emotion, imagination, and the beauty of human experiences. जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ किरदारों को नहीं बल्कि खुद को भी समझने लगते हैं. Literature allows us to step into different lives, feel different emotions, and see the world through someone else's eyes. कभी हम विक्टोरियन इंग्लैंड की सड़कों पर होते हैं तो कभी किसी हिंदी कविता की गहराई में खो जाते हैं. It helps us think critically, feel deeply, and express ourselves better. यह हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, एम्पैथी देता है और हमारी क्रिएटिविटी को और भी निखारता है. So, in this session, we are going to discuss the deeper value of literature. Now that we have introduced the importance of literature, let's dive deeper. What exactly is literature? Surprisingly, there isn't just one answer. Different scholars and authors have defined literature in their own ways, each highlighting a unique perspective. For example, Robert Louis Stevenson once said, "The difficulty of literature is not to write, but to write what you mean." Isn't that true? कितनी बार हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द में सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. That's where literature plays its role. It's not just about writing, but about expressing meaning in the most profound way possible. जब भी हम अपनी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को किसी को बताना चाहते हैं, किसी से शेयर करना चाहते हैं, बट हमारे पास कभी उसको बताने के लिए वर्ड्स नहीं होते, तो तभी लिटरेचर अपना काम करता है. On the other hand, Ezra Pound gave a different view. He defined literature as great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree. That means literature केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये डीप मीनिंग्स और फीलिंग्स से भरा हुआ है. Think about the works of Shakespeare. Every word carries different layers of meaning, making literature timeless. But simply literature means anything that is written, timetable, catalog, textbooks, even travel brochures, and so on. If we look literature in a broader sense, it can include anything that is written, from novel and poems to anything, such as timetables, catalogs, and so on. So, what really makes something literature? It's all about perception. Some believe literature is only artistic, while others see it as anything written. But one thing is clear: literature in its all forms shapes the way we think and communicate. कोई मानता है कि लिटरेचर ओनली आर्टिस्टिक वे से लिखा गया साहित्य है, बट कुछ लोग मानते हैं कि जो भी कुछ लिखा है, यानी कि न्यूज़पेपर हो गया या कोई कैटलॉग हो गया या कोई ट्रैवल ब्रोशर हो गया, सब कुछ लिटरेचर है. Now let's explore how literature influences our lives even further. Ready? Let's move ahead. Literature is more than just words on a page. It's a window into humanity. जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कहानियाँ नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हम इंसानियत को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं. Think about it. Why do stories from different times and places still touches our heart? That's because literature explores universal themes like love, loss, hope, and identity, and so on. These emotions are timeless and connect us all, no matter where we come from. लिटरेचर हमें उन लाइफ्स और कल्चर्स को महसूस करने के लिए मौका देता है जो हमसे अलग है.
फॉर एग्जाम्पल हमने इंडियन लिटरेचर पढ़ लिया तो हम इंडिया के लोगों से, इंडिया के कल्चर से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम किसी बाहर के देश जैसे कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं, अफ्रीकन पोएट्री, अफ्रीकन नॉवेल्स जब हम पढ़ते हैं, तब उनके कल्चर के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो लिटरेचर हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर को समझ सके। It allows us to step into someone else's shoes, to feel their pain, their joy, their struggles. Whether it's a classic novel from Victorian England or a contemporary Indian short story, literature helps us understand people beyond our own experiences. Through characters and stories, we learn about human nature, the complexities of life, the choices people make, and the emotions that drive them. For example, जब हम प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, जब हम प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ते हैं तब हम प्रेम और सोशल रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। तो another example is द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। जब हम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक पढ़ते हैं तो हमें वॉर के टाइम की जो इनोसेंस थी, होप थी, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। सिमिलरली मालगुडी डेज हो गया बाय आर के नारायण, जो हमें इंडियन कल्चर के बारे में, सिंप्लिसिटी के बारे में बहुत ही डीपली समझाता है। थ्रू दिस स्टोरीज वी डोंट जस्ट लर्न अबाउट द कैरेक्टर्स, वी लर्न अबाउट आवर सेल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उस स्टोरी में उस समय की बातें लिखी गई होती है, उस समय का क्या कल्चर था, कैसे लोग थे, लोगों के नेचर कैसे थे, उनके बारे में हम जान सकते हैं। जब हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं ना, जैसे हम अफ्रीकन नॉवल पढ़ रहे हैं, द ब्लूएस्ट आई, तब हम अफ्रीकन कल्चर के बारे में जानते हैं। जब हम इंडियन नॉवल या शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं जैसे कि आर के नारायण, मालगुडी डेज, तो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके नेचर के बारे में, उसके नेचर में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सबके बारे में जानते हैं और खुद से सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह पे होते तो हम क्या करते, हम कैसे सोचते। ये सब चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती है। So literature is not just about storytelling, it is about understanding humanity itself. It teaches us empathy, broadens our perspectives, and helps us see the world with more compassion. Literature is not just about reading stories, it's about sharpening our minds and expanding our perspectives. जब हम एक novel या poem पढ़ते हैं, we are not just absorbing words, we are analyzing, questioning, and interpreting. Literature develops critical thinking and analytical thinking. जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं ना, हम क्रिटिकली उसके बारे में सोचते हैं कि कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, उस होल नॉवेल में कौन सी थीम्स थी, कौन से सिंबल यूज़ किए हैं राइटर ने, कौन नैरेटिव है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, या ये सब सोचने पे हम मजबूर होते हैं, हम उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं, जिससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और भी स्ट्रांग होती है।
It teaches us to question assumptions and think critically about the world. किसी नॉवेल या किसी लिटरेचर को पढ़ते वक्त हम उस टाइम के उस सोसाइटी के बारे में जानते हैं, हमें क्वेश्चन करते हैं कि उस समय कैसा कल्चर था, कैसे लोग थे। उन्होंने किसी कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस कैरेक्टर ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते। ये सब हम क्रिटिकली सोचने लगते हैं। By interpreting text, we learn to form and defend our own opinions. हम अपना खुद का ओपिनियन बना सकते हैं। जैसे कोई कैरेक्टर के बारे में पढ़ के हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसने क्या डिसीजन लिया है, क्या हम भी वो डिसीजन लेते, अगर उसकी जगह हम होते तो हम क्या करते, अगर उस सोसाइटी के बारे में, अगर उस सोसाइटी के कल्चर में अगर हम होते तो हम क्या करते। सो ये सब चीज़ें हमें क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग में हेल्पफुल होती है। लिटरेचर हेल्प्स अस टू It helps us to explore themes, symbols, and narratives in depth. For example, when we read George Orwell's 1984, George Orwell, we begin to question the role of government surveillance and control. It is basically a political novel. So, in this novel, जॉर्ज ऑरवेल ने पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो हम उसके बारे में हम अपना इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, अपना खुद का ओपिनियन बना सकते हैं। सिमिलरली शेक्सपियर्स हेमलेट forces us to think about morality, revenge, and human indecisiveness. एक अच्छी बुक हमें दुनिया को नए नज़रिए से देखने की शक्ति देती है। ऑरवेल्स एनिमल फार्म, एक और नॉवेल है एनिमल फार्म। ये भी जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल है एनिमल फार्म। May seem like a simple story about animals, but it's actually a deep political satire on corruption. एनिमल फार्म में बेसिकली क्या है कि एनिमल्स की स्टोरी है पूरी, बट अगर हम इसको एवेल्युएट करेंगे अच्छे से तब हमें पता चलेगा कि इट इज़ बेसिकली अ सटायर ऑन पॉलिटिक्स, करप्शन के बारे में। तो जॉर्ज ऑरवेल में यहाँ एनिमल को एज अ सिंबल यूज करके गवर्नमेंट पे सटायर किया है। तो ये सब हमें डीपली सोचना पड़ेगा, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। By interpreting text, we learn to form and defend our own opinions. Literature teaches us to think critically, question assumptions, and see beyond the obvious. इतना ही नहीं, ये हमें एक इन्फॉर्म्ड और अवेयर ह्यूमन बनाता है जो सिर्फ सोचता नहीं समझता भी है। So, next time if you pick a book, don't just read it, analyze it, question it, and let it shape the way you see the world. आपने कौन सी बुक पढ़ी है? प्लीज डू कमेंट। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के नाम लिख रही हूँ जो आपको बीए के या एमए के आपका जो भी सिलेबस है उसमें आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एनिमल फार्म हो गया, जॉर्ज ऑरवेल, फिर हो गया 1984, ये भी जॉर्ज ऑरवेल का ही है। फिर हो गया हमारा गोदान बाय प्रेमचंद। गोदान की जो कहानी है वो सिर्फ एक फार्मर की स्ट्रगल नहीं है, बट सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है उसके
ये बहुत ही अच्छा प्रेमचंद ने इसको डिस्क्राइब किया है कि हम उस टाइम के कल्चर के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं. इकोनॉमिक सिचुएशन. So these are some examples. You can note it down. Literature helps us to build empathy and emotional intelligence. Now, what is empathy? Empathy जब हम किसी को हम किसी के पेन को या उसकी हैप्पीनेस को जब हम हमारे नज़रिए से देखते हैं, जब कोई इंसान दुख में है, दर्द में है, हम अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, या उसको कितनी खुशी हो रही होगी, या कैसा दर्द हो रहा होगा, कैसा फील कर रहा होगा वो. तो उसको बोलते हैं एम्पैथी. एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी. सिंपैथी में क्या होता है, किसी को हम जब सहानुभूति दिखाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, जैसे कि हमारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, हम उसको बोलते हैं कि आई कैन फील योर पेन. मुझे मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को, तुम्हें इतना दर्द हो रहा होगा. तो दैट इज सिंपैथी. हम उसको सहानुभूति दिखाते हैं. एंड एम्पैथी इज व्हेन यू put yourself in someone's shoes. So literature builds empathy and emotional intelligence. Literature allows us to step into someone's shoes, fostering compassion and understanding. जब हम किसी की जगह खुद को रख के देखते हैं ना, तब हम उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं. दोनों में अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. It helps us connect with emotions and experiences we may never encounter in real life. जैसे लिटरेचर का कोई एक कैरेक्टर हो गया, आप खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस कैरेक्टर की जगह. तो उसकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो वो कैरेक्टर फेस कर रहा है, वो सब आप ऐसे फील कर रहे हो कि जैसे कि वो आपके साथ हो रहा है, और आप वो सब फेस करते हैं. आपका क्या डिसीजन होगा उसकी जगह, आप उसको कैसे हैंडल करते, तो वो सब आप उसको फील कर सकते हो, जो कि आप रियल लाइफ में कभी आपको ऐसा हो सकता है कि कभी आपको वो रियल लाइफ में फील ना हो. By understanding diverse perspectives, we become more empathetic and open-minded. When we read a novel, a short story, or even a poem, we are transported into someone else's world. We see life through their eyes, feel their emotions, and understand their struggles. Imagine reading. Uh, Here is an example. To Kill a Mockingbird by Harper Lee. You experience the injustice faced by Tom Robinson. Tom Robinson is a character, the innocence of Scout, and the wisdom of Attic Finch. So, this is the novel. You can use it as an example. नाउ थिंक, अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन से गुजरे ही नहीं, तो क्या आप उस दुख या खुशी को महसूस कर पाएंगे? लिटरेचर हेल्प्स अस experience emotions and situations we never encounter in real life. Connecting with emotions. Have you ever read something and thought, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है?
कभी कोई कैरेक्टर के बारे में जब पढ़ रहे हो, कभी कोई किताब पढ़ रहे हो, कैरेक्टर कोई डिसीजन लेता है तो आपको कभी ऐसा लगा है कि ये तो बिल्कुल मेरे मेरे जैसा सोचता है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही डिसीजन लेता या मैं यही करता? दैट्स बिकॉज लिटरेचर कनेक्ट्स अस ऑन an emotional level, whether it's Shakespeare's tragedies, Premchand's realistic stories, or modern fiction. Literature reflects human emotions, love, loss, happiness, anger, and hope. By understanding these emotions in characters, we learn how to deal with our own emotions better. जब हम किसी कैरेक्टर का दुख महसूस करते हैं तो हम और भी काइंड बनते हैं. Literature also helps us understand different cultures, ideologies, and way of life. It challenges stereotypes and broadens our thinking. For example, when we read Malala Yousafzai's story, we realize the importance of education and the struggles faced by young girls. आप सब जानते होंगे मलाला यूसुफजई की कहानी को. उन्होंने एजुकेशन लेके कहाँ से कहाँ उन्होंने एक उनकी लाइफ में जो चैलेंज आया था उसको उन्होंने एजुकेशन के थ्रू ओवरकम करके अपनी स्ट्रगल्स को ओवरकम किया. तो हम उसको फील कर सकते हैं ना, उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. दिस अंडरस्टैंडिंग मेक्स अस मोर ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्टिंग. हम सोचते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल आएगा तो शी इज़ द एग्जाम्पल ना. अगर वो कर सकती है, उन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट. So, dear students, I encourage you to read more, to explore different stories, and to let literature shape you into a more empathetic and emotional intelligent person. As the famous saying goes, a reader lives 1,000 lives before he dies. A reader lives 1,000 lives. मतलब जो कोई किताबें पढ़ने का शौक रखता है ना, उसको बहुत सारी किताबें पढ़ रहे होते हैं वो तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के थ्रू जाते हैं, उन कैरेक्टर को फील करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, खुद को उसकी जगह रखते हैं. तो उनके सारे जो इमोशंस है ना वो रीडर फील करता है. तो रीडर लिव्स 1,000 lives बिफोर ही डाइज. द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वंस. जो किताबें पढ़ने का शौकीन नहीं है तो वो सिर्फ एक ही जिंदगी जिएगा. बट जो किताबें पढ़ने का शौकीन है वो कैरेक्टर्स के थ्रू 1,000 lives जिएगा. उनके इमोशंस को फील करेगा, स्ट्रगल्स को फेस करेगा, सब कुछ करेगा. Let's see the important aspect of literature, its role in preserving and transmitting culture. Literature is not just about stories, it is a bridge between the past and the future. It carries the history, values, and traditions of societies, ensuring they are never forgotten. लिटरेचर क्या है ना, एक ब्रिज की तरह काम करता है. जैसे कि ये ब्रिज हो गया, ये हो गया पास्ट हमारा, ये हो गया हमारा फ्यूचर. जब हम प्रेजेंट में है ना, ये है प्रेजेंट. मैं कोई पुरानी स्टोरी पढ़ रही हूँ तो ये हिस्ट्री की तरफ ले जाएगा मुझे. उस टाइम की क्या कल्चर था, कैसे लोग थे, कैसी सिचुएशन थी, सोशल सिचुएशंस कैसी थी, इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी थी. तो मैं पास्ट में चली जाऊंगी तो मैं हिस्ट्री की तरफ देख सकती हूँ. जैसे कोई बुक फ्यूचर के बारे में लिखी गई है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, या फिर कोई इमेजिनेशन है तो उसके बारे में मैं जान सकती हूँ. हालांकि ये फ्यूचर का कोई वो नहीं है कि ऐसा होगा ही फ्यूचर में, बट इमेजिनेशन को देख सकते हैं हम यहाँ राइटर की. लिटरेचर एज ए टाइम कैप्सूल.
Think of literature as a time capsule. It captures the struggles, achievements, and aspiration of people from different eras. For example, if we want to understand ancient Greek civilization, we turn into होमर्स एपिक. अगर हमें ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में जानना है तो हम होमर के एपिक पढ़ेंगे. इनका एपिक है द इलियड एंड द ओडिसी. This text tells us about their beliefs, heroic ideals, and even their daily life. Similarly, in India, Ramayana and Mahabharata have preserved not only religious values but also lessons on morality and duty for generations. These epics continue to influence our cultural fabric even today. जब हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं देखता, बट सोशल और सोशल लेसन्स हो गए. जैसे कि कृष्णा ने अर्जुन को जो सीख दी थी कर्म के बारे में या पेशेंस के बारे में, एक और भी बहुत कुछ है रामायण और महाभारत में जो हमें आज भी सीखने को मिलता है. बाय द टाइम इट डिडंट फेड अवे. जब भी हम पढ़ते हैं हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. It preserves history, values, and traditions of society. It serves as a record of human achievements, struggles, and aspiration. Through literature, we pass on knowledge and wisdom to future generation. अगर हम पुराने पुराने जो किताबें लिखी गई हैं, नॉवेल्स लिखी गई हैं, आज हम पढ़ते हैं तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे आज का कोई राइटर है, वो कोई बुक लिख रहा है तो जो फ्यूचर की जनरेशन है वो उससे सीख लेगी. Literature also documents social struggles and revolutions. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी हमने मलाला का लिया था ना, उनका लेते हैं. उनके बारे में एक बुक अभी आई थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है आई एम मलाला. दिस बुक gives us insight into the fight for education and women's right. जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है ना, उनके लिए ये बुक स्टैंड करती है. एग्जाम्पल के लिए आप इसको लिख सकते हैं. इवन इन इंडिया, मुंशी प्रेमचंद स्टोरी, प्रेमचंद की कहानियां. Munshi Premchand's stories captured the pain of poverty and social injustice, making people more aware of these issues. उनके टाइम में सोशल सिचुएशन, पॉवर्टी और पॉलिटिकल, उनको ये सब दर्शाता है. पॉलिटिकल इश्यूज या सोशल इश्यूज को दर्शाता है. Through such works, literature acts as a mirror reflecting society's evolution. Through literature, we pass on knowledge. जैसे कि मैंने बताया, imagine a world where no stories or books existed. How would we learn about the struggles of our ancestors, the mistakes of the past, or the philosophies that shapes our lives? Literature keeps this alive. अगर इमेजिन करो कि कोई लिटरेचर या कभी कोई बुक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आज तक कोई बुक लिखी नहीं गई, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे एंसेस्टर की लाइफ कैसी थी, उनके टाइम पे कैसे सोशल सिचुएशंस थे,
या कौन सी स्ट्रगल्स उन्होंने फेस करी। सो लिटरेचर के थ्रू ये सब आज भी जिंदा है। नेक्स्ट है encourages creativity and imagination. Creativity and imagination are the foundations of human progress. ये हमें नई संभावनाओं की तरफ ले जाती है। लिटरेचर प्लेस अ क्रूशियल रोल इन fueling both, allowing us to explore ideas beyond our immediate reality. When we read books, we enter new worlds. जैसे ही हम किताब खोलते हैं हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हैरी पॉटर। बाय J.K. रोलिंग। जब हम हैरी पॉटर पढ़ते हैं ना ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसको ऐसी कोई दुनिया नहीं है जो उन्होंने हैरी पॉटर बुक में बताया है, बट हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। हम उसको फील करते हैं कि चलो ऐसा ऐसा है, ऐसी कोई जादुई दुनिया है जहाँ पे कोई एक यूनिवर्सिटी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जादू की दुनिया है, जादू सीख रहे हैं। बट इन रियल लाइफ ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बट हम जब उस किताब को खोलते हैं ना हम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। दिस बुक brought magic to life. These stories inspire us to dream and innovate. जैसे कि J.K. रोलिंग ने एक अलग ही दुनिया बनाई है अपनी क्रिएटिविटी से, जबकि ऐसी दुनिया तो कभी रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं। बट इनकी इमेजिनेशन है ऐसी, और जो डिटेल से उन्होंने बुक को लिखा है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, ये हमें और भी इंस्पायर करती है क्रिएटिविटी और इमेजिन करने के लिए। इट encourages us to think beyond the ordinary and express our lives creatively. Great writer encourages us to think differently. For example, हम लेते हैं 1984 ही लेते हैं, चलो 1984 by George Orwell made us question government surveillance. हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा था कि किंग जो डिसीजन लेते थे वो सबको मानना पड़ता था, जब किंग का रूल हुआ करता था। बट जब गवर्नमेंट आई तब 1984 में जो पॉलिटिकल इश्यूज दिखाए गए जॉर्ज ऑरवेल ने, तो उन सबको पढ़ के हमें क्वेश्चन होता है कि उस वक्त ऐसा क्यों था। तो हमें जो रेगुलर सोच से उससे अलग से हटके सोचने पे मजबूर करता है। दूसरा हम लेते हैं रविंद्रनाथ की पोएट्रीज, टैगोर। Rabindranath's poetry expressed deep emotions in unique ways. Whether it is science fiction, poetry, or drama, literature challenges us to look at the world from fresh perspectives. जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना तो हम एक नए नज़रिए से उसको सोचने लगते हैं। किसी लिटरेचर को इवेल्युएट करने के लिए हमें उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, उसकी सोशल सिचुएशन, कल्चर, इकोनॉमिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके बारे में हम इवेल्युएट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, हर अलग अलग अंदाज से उसको सोचते हैं, अलग नज़रिए से उसको देखने की कोशिश करते हैं। Writers and readers alike use literature as a tool for innovation and self-expression. राइटर के दिमाग में कोई स्टोरी है,
या फिर उसका उसका कोई एक्सपीरियंस है, उसकी लाइफ स्टोरी है। जैसे कि हमने लिया था मलाला का एग्जाम्पल लिया था हमने, उनकी लाइफ स्टोरी उन्होंने लिखी ना अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, आई एम मलाला। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को उस बुक में डाला, तो उनका हुआ एक सेल्फ एक्सप्रेशन। तो लिटरेचर एक सेल्फ एक्सप्रेशन के टूल की तरह काम करता है। नॉट जस्ट राइटर्स बट रीडर्स टू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लिटरेचर। Many great inventors, artists, and leaders found inspiration in books. Even Einstein once said, imagination is more important than knowledge. आइंस्टाइन ने भी एक बार बोला था कि imagination is more important than knowledge. Let's move ahead. मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के नाम लिख के दे रही हूँ आपको, आपके एग्जाम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो हो गया मलाला, आई एम मलाला, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। और हो गया टैगोर की पोएट्री, फिर हो गया 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। सो लेट्स मूव अहेड, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइफ कैन बी स्ट्रेसफुल, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। There are moments when we feel burdened by responsibilities, challenges, and uncertainties. In such times, literature acts as a refuge, as a place where we find solace and escape. जब हम बहुत ही थक जाते हैं ना ज़िंदगी से, या कभी कभी मन करता है चलो कहीं चले जाते हैं, चलो कहीं दूर जाते हैं, या फिर हमें अकेले रहने का मन करता है, जब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी देर के लिए ही सही बट दूर जाना चाहते हैं, तो तब लिटरेचर काम करता है। लिटरेचर के थ्रू हम एस्केप कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ से थोड़ी देर के लिए। लिटरेचर ऑफर्स एन एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ एवरीडे लाइफ। पूरा दिन आपने काम कर लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा ली, सब कुछ हो गया, बट आप रात में सोने से पहले 10 मिनट आपने बुक पढ़ ली, आपकी जो एवरीडे लाइफ है ना उससे अलग अलग दुनिया में आप 10 मिनट के लिए चले गए, तो एक आपको अंदर से ही अच्छा फील होगा। ऐसा लगेगा कि एक अलग ही दुनिया में है, अलग कैरेक्टर में है, आप अलग कैरेक्टर के थ्रू अलग इमोशंस फील कर रहे हैं, अलग दुनिया के अंदर अलग अलग चीज़ें हो रही है, तो एक एस्केप की तरह काम करते हैं लिटरेचर। When we read a book, we step into another world. कहानियाँ हमें असल ज़िंदगी की परेशानियों से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती है। Think about how fantasy novels like यहाँ मैं बता रही हूँ आपको एक एग्जाम्पल, फैंटेसी नॉवल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, या फिर हो गया हैरी पॉटर। The Lord of the Rings or Harry Potter transport us to magical lands where anything is possible. हमारी रियल लाइफ जिंदगी में क्या होता है कि हम बहुत थक जाते हैं, और ये ऐसी जो फैंटेसी वाली स्टोरीज होती है, नॉवेल्स होती है ना, हमें हमें अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहाँ कुछ भी हो सकता है, हमारी इमेजिनेशन के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। Even in realistic fiction, we find characters facing struggles similar to ours, making us feel understood. या हम कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जो रियल लाइफ में हमसे कनेक्ट हो सकती है, रियलिस्टिक फिक्शन है, कोई उसके जो कैरेक्टर के लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रही हैं वो हम ऑलरेडी हम हमारी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम कैरेक्टर में देखते हैं ना कि उसकी लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, और वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है, तो हम खुद उससे
कनेक्ट कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि चलो प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज हैं तो सब नॉर्मल है, दैट कैन बी हैंडल एंड दैट कैन बी क्योर्ड ओवर द टाइम. It provides solace during difficult times, offering hope and understanding. Literature is not just about escape, it is also about comfort. When we read poetry by Rumi, Kabir, or even Robert Frost, their words provides us hope. शब्दों में ताकत होती है जो हमारे दिल को सुकून देती है. Many people turn to books in moments of sadness because stories remind us that we are not alone in our struggles. कुछ स्टोरीज होती हैं, उसके कैरेक्टर्स से हम रिलेट कर पाते हैं, उसकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स है वो हम रिलेट कर पाते हैं. या कोई पोइट्री हो गई, या कोई मोटिवेशनल बुक हो गई, या फिलोसॉफिकल बुक हो गई. जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई ऐसी फिलोसॉफिकल बुक पढ़ ली आपने, तो आपको समझ आएगा कि नहीं, किसी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेना है. वी कैन मेक इट ईजियर. हर एक प्रॉब्लम की कोई कोई ना कोई सोल्यूशन होती है. तो ऐसी बुक्स हमें हेल्प करती है टू फेस द प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ. Stories and poems can be refuge, helping us to feel less alone in our struggles. Books, poetries, and even songs become companions. When we read The Diary of a Young Girl, अभी हमने इसके पहले भी हमने लिया था The Diary of a Young Girl. We see resilience in the face of hardship. When we lose hope, motivational lectures like The Alchemist encourages us to keep going. एक अच्छी किताब हमें सहारा देती है, और एक जैसे एक हमारा बेस्ट फ्रेंड है. जब हमारा कोई भी साथ नहीं देता, ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कभी कभी जब हम बहुत अकेला फील करते हैं, तो एक अच्छी किताब जैसे फिलोसॉफिकल बुक हो गई, या कोई ऐसा लेक्चर हो गया फिलोसॉफिकल, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है. हमारी प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको फेस करने कैसे करना है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. लेट्स मूव अहेड. शेप्स आवर आइडेंटिटी एंड वैल्यूज. लिटरेचर हमारे पर्सनालिटी को शेप करता है, हमारे वैल्यूज को शेप करता है. लिटरेचर इज मोर देन एंटरटेनमेंट, इट इज अ सेंचुरी. इट प्रोवाइड्स comfort, healing, and the escape we need it most. Literature is not just a form of entertainment or a collection of stories. It is a mirror, a guide, and a teacher. It shapes our identity, influences our values, and helps us understand both ourselves and the world around us. Let's explore how literature plays a fundamental role in defining who we are. Literature shapes who we are. Literature influences our beliefs, values, and worldview. From a young age, the books we read begin shaping our perspectives. They expose us to different cultures, philosophies, and the ways of thinking. When we read To Kill a Mockingbird, To Kill a Mockingbird by Harper Lee, we learn about racial injustice, empathy, and moral courage. Same in 1984, George Orwell's 1984 warns us about the dangers of absolute power and the importance of freedom. Every book carries an underlying philosophy, whether it's the existential dilemmas in Crime and Punishment by Dostoevsky, or the idea of destiny in The Alchemist by Paulo
These ideas shapes how we see the world, question our surroundings, and make decisions in our lives. Literature helps us define our identity by exposing us to different ideas and philosophies. Characters from literature become reflections of our struggles, aspirations and emotions. कभी कभी ऐसा होता है हम किसी बुक पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके कोई एक कैरेक्टर हमारे हमें ऐसा लगता है ये कैरेक्टर तो हम मेरे जैसा ही है, हम मेरे जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मेरे जैसे इमोशंस है इसकी, मेरी जैसी सिचुएशंस है, तो हम उससे उससे रिलेट कर पाते हैं, और जैसे वो अपनी लाइफ के डिसीजन लेता है, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजन वाइजली लें. For example, a young person questioning societal norms might see themselves in Holden. Holden, here is an example. You can note it down. From The Catcher in the Rye, someone facing adversity may find strength in Jane Eyre. Jane Eyre is a very famous novel, classic novel, who overcomes suffering with resilience. Literature allows us to explore different identities and possibilities. It makes us ask, who am I? What do I stand for? Is in this process we define ourselves. एक और एग्जाम्पल है, that is the namesake by Jhumpa Lahiri. इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताया गया है. जो मेन थीम है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस. सो अगर हम हमारी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, या मेरी लाइफ का क्या उसूल है, क्या मैं कौन हूँ, ये सब चीज़ें अगर आप आपके दिमाग में चल रही हैं बातें, तो द नेम सेक का कैरेक्टर है गोगोल, उससे आप रिलेट कर पाओगे. ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो. Through literature we discover that what matters most to us and how we want to live our lives. Our values, what we consider right and wrong, important or trivial, are shaped by what we read. Literature presents ethical dilemmas and forces us to think critically. Shakespeare's Hamlet questions the nature of revenge and morality. Pride and Prejudice by Jane Austen challenges societal norms regarding class and gender. Bhagavad Gita and Bible are offering spiritual guidance on duty, faith, and religious. Through these stories, we refine our sense of justice, kindness, and perseverance. Literature doesn't dictate our values but gives us the tool to build them. Literature shows us what truly matters. Sometimes we get lost in life, unsure of our purpose. Literature helps us rediscover it. Through books, we find inspiration, we see the struggles of others, we learn from their journeys and apply their lessons to our own life. So, literature is not just about stories, it is about shaping minds, hearts, and souls. It influences our beliefs, helps us define our identity,
strengthens our values, and reveals what truly matters. So, next time if you pick a book, remember you are not just reading words, you are discovering new ways to think, new ways to feel, and ultimately new ways to be. आपने अभी तक कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन सी बुक्स पढ़ी है? प्लीज़ डू कमेंट. Keep reading, keep growing, keep discovering yourself. Thank you for watching. Do not forget to subscribe and like. Thank you.